Good morning everyone and very cool welcome to one and all. Not warm welcome because इकोलॉजी तक वार्म वेलकम था, अब कूल सेशंस पे बढ़ने वाले हैं, इसीलिए अ वेरी कूल वेलकम टू वन एंड ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर. ठीक है, and me myself as usual NR ma'am teaching you biology. Okay, done? Yes. So we are moving on to the equation, we are moving on towards the sessions of genetics and evolution. We are up to the unit of what? We are up to the unit of genetics and evolution. In this unit, we are going to see basically 3 chapters of your NCERT, and those 3 chapters of your NCERT includes principle of inheritance and variation, principles of inheritance and variations. दूसरा डालिए जीन एंड क्रोमोसोम. क्या डालोगे? जीन एंड क्रोमोसोम. एंड तीसरा चैप्टर जो हम लोग देखेंगे वो है इवोल्यूशन. कोई डाउट? आप लोग कहोगे नहीं मैम ये तो आपने हमें एनसीईआरटी के यूनिट के चैप्टर्स के नाम बताए. कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं बेटा. जेनेटिक्स इज वे मोर इफेक्टिव, वे मोर इंटरेस्टिंग. बहुत हो गई इकोलॉजी के सेशंस, बहुत पढ़ लिए इकोलॉजी, पढ़ पढ़ के थक गए, पर मैम जेनेटिक्स जैसा कुछ भी नहीं. बोले तो जेनेटिक्स जैसा कुछ भी नहीं. सो हेडिंग डालिए, पहला चैप्टर इसमें का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. उससे पहले मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू व्हाट इज जेनेटिक्स. सो व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is a branch of science which deals with genetics is basically a branch of science which deals with, what did I say? Genetics is a branch of science, but which science? इसी में लिख लो biological. So sentence go with genetics is a branch of biological science which deals with heredity and inheritance. किससे डील करता है ये? Heredity and inheritance. What is this heredity? What is this inheritance? One question, one thing you should notice, that why are you few of your characters which are similar to your parents? What is the reason? Why is it so? There few qualities, there few resemblance. आपकी कुछ हरकतें, आपकी कुछ आदतें, आपकी शक्ल, आपके ओठ, आपके नाक, आपके etc 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 resembles to your parents. पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए. Why? Because of genetics. And what is it? That is it, heredity. Transmission of characters. Write it down. Heredity is, what is heredity? लिखो. Transmission of characters from parent to offspring. Transmission of characters. What I said? Transmission of characters from parents to offspring. कुछ कैरेक्टर्स, कुछ चीजें जो हम अपने पेरेंट्स की तरह रिसेम्बलेंस दिखाते हैं उनके बच्चों में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं. कोई डाउट? बिल्कुल नहीं. इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. व्हाट इज इनहेरिटेंस देन? process of transmission of character from parent to offspring is called as इनहेरिटेंस. फिर आप बोलोगे मैम इसमें और हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है? बेटा जी लुक, हैव अ लुक, क्लियर लुक देखिए बेटा जी, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है. क्या है बेटा जी? ये एक प्रोसेस है. दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस. जिस तरीके से, जिस थ्रू विच, कौन सा तरीका अपना करके ये कैरेक्टर्स हेरिडेट हुए हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. समझ में आया? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस
which deals with heredity and inheritance. कोई डाउट है यहाँ तक? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं. इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस में अगेन इनहेरिटेंस शोज टू बेसिक टाइप्स और दो चीजें होती है बेटा जी. एक होती है सिमिलैरिटी और दूसरी होती है वेरिएशन. सिमिलैरिटी एंड दूसरी चीज होती है वेरिएशन. लिखना सिमिलैरिटी में रिसेम्बलेंस ऑफ कैरेक्टर, resemblance of character from parent is similarity. The change or the variation, the change or the variation, the change or the variation from the parent, the change or the verified या फिर diverseness लिख लो, diverseness from the parent is variation. Inherit कुछ न कुछ प्रोसेस से, कुछ न कुछ तरीके से, कोई न कोई क्वालिटी से you have inherited, you have taken few of your characters from your parent. Got it? Clear? No doubt? Yes. When you have taken those characters from your parents, that can basically include two things. That include similarity and variation. क्या include करता है वो? Similarity and variation. What is this similarity? Similarity is resemblance of character from parent. आप अपने parent से कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाते हो या फिर कैसे रिसेंबल करते हो, कैसे सेम क्या सेम चीजें हैं, क्या सिमिलैरिटीज है, उसी को हम लोग सिमिलैरिटी कहते हैं. How, which way, by what way you're different from your parents, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं. बेटा जी, be energetic, be proud, be happy to learn genetics in such a beautiful way. I'm telling you, I will make sure ये concept जहन में बैठे. Why? Because it is important and it is way more interesting. समझ में आया? So always I'm shouting out of my lungs so that you should always be energetic, be happy, give a big smile and then focus. समझ में आया बेटा? चलो. So I said similarity and variation. Similarity is resemblance of character from parent. Variation is the change or the diverseness which offspring show from the parent. तो you should ask me, मैम तब से आप पेरेंट कैरेक्टर कर रहे हो, मैम किस कैरेक्टर की बात कर रहे हो आप? व्हाट इज दिस कैरेक्टर? है ना यहाँ पर कैरेक्टर, दिखा ना कैरेक्टर, आपको दिख रहा है बेटा जी? ये देखिए कैरेक्टर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है. तो लिखिए अगला डेफिनेशन, व्हाट इज कैरेक्टर. बोलो मैम व्हाट इज दिस कैरेक्टर? फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्या कहा मैंने? लिखना है इसका डेफिनेशन बेटा. फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फीचर्स आर कॉल्ड एज कैरेक्टर, और कॉल्ड. क्या फीचर्स हो सकते हैं? एग्जाम्पल लिख लो, हाइट. एग्जाम्पल्स लिखना चाहो तो हेयर कलर लिख लो, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, टोन. ये कैसे उस ऑर्गेनिज्म की क्या क्या फीचर्स हैं, उसी फीचर्स को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर. समझ में आया? एक ऑर्गेनिज्म के कैसे कैसे फीचर्स हो सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कैरेक्टर कहते हैं. जैसे कि हाइट क्या है? हाइट आपकी एक कैरेक्टर है जो कि टॉल हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है. फिर कलर, आप डार्क हो सकते हो, आप लाइटर हो सकते हो, आप फेयर हो सकते हो. हेयर कलर, आपका हेयर कलर ब्लॉन्ड हो सकता है, आपका हेयर कलर ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है. अगर फिर आपने कलर कर, आजकल के बच्चों आपको बहुत शौक है कलर करवाने का, आपने पर्पल कर लिया, किसी ने ग्रीन कर लिया, किसी ने येलो कर लिया, किसी ने ट्विनिंग. हेयर टाइप कैसा है आपका? हेयर टाइप किसी के कर्ली है, किसी के वेवी है, किसी के स्ट्रेट है. ये भी एक कैरेक्टर हुआ. दिस इज व्हाट? दिस इज कैरेक्टर. टोन, हाउ डू यू स्पीक. मैं, कोई होर्स बोलता है, कोई सॉफ्ट बोलता है, कोई स्वीट बोलता है, कोई सॉफ्ट गाता है, कोई स्वीट गाता है, कोई डीजे बजाता है, डीजे के टोन में शाउट आउट करता है, शाउट आउट ऑफ देयर लंग्स. ये एक कैरेक्टर हो गया ना एक कैरेक्टर. बट इफ दोस कैरेक्टर्स, लिखना ट्रेट में, इफ दोस कैरेक्टर, if the
characters are inherited, if the characters are inherited, अगर कोई कैरेक्टर इनहेरिटेड हुआ या इनहेरिट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड आर डिटेक्टेड एज ट्रेट। अब समझ में आया बेटा कैरेक्टर और ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है? नहीं समझ में आया? मैं समझाती हूँ, सुनना। योर डैड इज टॉल, ओके, बी केयरफुल, लिसन। यू appears to be tall, got it? You have got this character from where? Tallness is what? Height. Height is what? Character. You have got that tallness character from where? You have got it from your parents. That is the character which is inherited from parents. That tallness came from where? That came from your parents. Plus it is what? It is detectable. Can you see it is detectable? Yes, you can say yes, it is detectable, and that is called as trait. समझ आए? एग्जाम्पल लिख लो ट्रेड का, टॉल, शॉर्ट या फिर ड्वार्फ। कलर ये एक कैरेक्टर था, लेकिन वो कलर कैसा है? वो आप डार्क कलर के हो, आप फेयर कलर के हो, प्लस वो इनहेरिट हुआ है आपको में कैसे? यू हैव गॉट इट फ्रॉम योर पेरेंट्स। सच टाइप ऑफ कैरेक्टर इज रिफर्ड टू एज व्हाट? इट रिफर्स टू एज ट्रेट। कोई डाउट है? इफ एनी डाउट प्लीज डू से, ठीक है? कैरेक्टर हो गया, ट्राइट हो गया, हुआ? आप लोग बोलोगे हाँ मैम हो गया। फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज कैरेक्टर, और उसी कैरेक्टर को जब आप इनहेरिट करते हो अपने पेरेंट्स से, अपने मॉम, अपने डैड से, प्लस वो डिटेक्टेबल है, वो दिखाई देता है कि आपके पापा लंबे हैं बेटा, इसीलिए आप भी लंबे हो। वो कैरेक्टर इनहेरिट भी हुआ है, प्लस वो डिटेक्ट भी हो रहा है। उसी टाइप ऑफ कैरेक्टर को हम लोग ट्रेट कहते हैं। एनी डाउट? नहीं? प्लीज आई विल टेल यू टू इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ट्रेट। टू बेसिक टाइप ऑफ ट्रेट्स होते हैं, ठीक है बेटा? सुनना, द ट्रेट कैन बी टू बेसिक टाइप, डोमिनेंट ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट। व्हाट इज दिस डोमिनेंट ट्रेट? लिखना बेटा जी, द ट्रेट, क्या कहा मैंने? द ट्रेट विच एक्सप्रेसेस द कैरेक्टर। क्या? द ट्रेट विच एक्सप्रेसेस इट कैरेक्टर, वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। अगर आप टॉल हो, आपने अपने पापा से ये कैरेक्टर लिया हुआ है, आप टॉल हो तो हो, आपकी मम्मी छोटी है लेकिन फिर भी वो कैरेक्टर आप में नहीं आया, लेकिन आपके पापा का कैरेक्टर, मम्मी के कैरेक्टर होने के बाद भी ये टॉलनेस आई, हर कंडीशन में वो कैरेक्टर दिखाता है, उसी को हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। बेटा जी लिख लो, मैं एग्जाम्पल से सब कुछ से समझा के बताऊंगी। क्लियर? द ट्रेट विच सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस था उसमें, था ना, ये देखो है ना, वैसे ही रेसेसिव में लिखना, रेसेसिव में द ट्रेट विच सप्रेसेस इज कैरेक्टर, सप्रेसेस इट कैरेक्टर, suppresses its character, unable to express, heterozygous condition, heterozygous condition called as, is called as recessive trait। the trait जिसका कैरेक्टर सप्रेस हो गया, उसका कैरेक्टर सप्रेस हो गया इन इट्स कैरेक्टर एंड अनेबल टू एक्सप्रेस, अनेबल है ये इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, वैसे ट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे ट्रेट को हम लोग रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? मैं समझाती हूँ। पापा आपके लंबे थे, मम्मी आपकी छोटी थी। बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा जी? ये एग्जाम्पल समझ लोगे तो बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप में मम्मी की भी कैरेक्टर आ सकती थी ना छोटेपन की, पर आप में पापा की ही क्यों आई? क्यों? क्योंकि टॉलनेस जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और पापा का जो कैरेक्टर है वो आप पे डोमिनेंट है, और मम्मी का जो कैरेक्टर यानी कि जो हाइट शॉर्टनेस है वो रेसेसिव है, वो छुप गई या दब गई, वो नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि डैड का कैरेक्टर हाइट टॉलनेस वो आप में डोमिनेंट होकर आया इन वही चीज, पर ये शॉर्टनेस अगर दिखी नहीं ना, ये शॉर्टनेस सप्रेस हो गई ना, क्यों?
द ट्रेट विच सप्रेसेस इट्स कैरेक्टर, हो गई ना सप्रेस, एंड अनेबल टू एक्सप्रेस, शॉर्टनेस दिखी क्या, नहीं दिखी, इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज रेसेसिव ट्रेट. बट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, फिर आप मुझसे दौड़े दौड़े आओगे और बोलोगे कि मैम व्हाट इज दिस हेटेरोजाइगस कंडीशन, या क्या होता है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन. तो मैं आपको एक चीज, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने शुरू कहां से किया था. ठीक है, समझना. चलो, कैरेक्टर, फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज कैरेक्टर, एक्सेप्टेड, वेल एंड गुड. या height, color, hair color, tone, etc. are the few examples of character. Correct? Yes. Trait, if those characters are inherited from your parents and are detectable, वो वैसे characters हैं जो आपको parents से आए plus you can see it. What are those? They are trait. Accepted? Yes. Then I have told you this trait can be two types, dominant trait and recessive trait. बेटा आ इधर हो गया है, ठीक है, चलो. So this can be of two types, dominant trait and recessive trait. Dominant trait, the trait which expresses its character in any condition. हर कंडीशन में आने पे वो अपना कैरेक्टर दिखाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं. रेसेसिव ट्रेट, इट सप्रेसेस इट्स कैरेक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसेसिव. जैसे कि पापा मम्मी वाला, मम्मी छोटी थी, पापा लंबे, हाइटनेस आप भी टॉल हुए, लेकिन मम्मी का जो कैरेक्टर था वो हाइटनेस शॉर्टनेस का वो सप्रेस हो गया. यहाँ तक क्लियर. लेकिन फिर आप बोलोगे मैम ये हेटेरोजाइगस है क्या, तो उससे पहले एक टॉपिक या फिर एक पॉइंट डालना, लिखो टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर, लिखना, डिक्टेट कर रही हूँ, लिखो लिखो जल्दी लिखो. टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर वी रिक्वायर टू सेट ऑफ एलील. Right? To express a character, we require two sets of allele. What is this? I'll tell you. Watch. 4 point देके. To express a character, two set of genes, alleles are required. किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए वी रिक्वायर टू सेट ऑफ जीन्स या फिर टू सेट ऑफ एलील्स आर रिक्वायर्ड. टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर, टू सेट ऑफ जीन्स और टू सेट ऑफ एलील्स आर रिक्वायर्ड. एनी डाउट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैम अभी आपने बताया जैसे कि टॉल, अगर एग्जाम्पल लिखना, टॉल ये एक कैरेक्टर है, हाइट ये एक कैरेक्टर है, टॉल ये एक ट्रेट हो गया, तो टॉल को एक्सप्रेस करने के लिए तो दो जीन्स दो एली लगेंगे ना, वो टी मान लो, टी फॉर टॉल, टी फॉर टी. टॉल को एक्सप्रेस होने के लिए ये टी ये दोनों जीन्स लगेंगे, समझ में आया. बट टू सेट ऑफ जीन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टॉल टी जीन्स. दिया एग्जाम्पल में, कोई डाउट नहीं. फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीन्स. समझ में आया? समझना बेटा, व्हाट इज जीन्स. आ गए ना, जीन्स से जेनेटिक्स तक बढ़ेंगे, ठीक है, समझना. क्रोमोसोम, टू क्रोमोसोम्स, टू क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड थ्रू व्हाट, क्या बोलते हैं इसको बेटा, जिसने बता दिया लाइव वालों जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्या बोलते हैं इसको. सेशंस वाले जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या बोलते हैं इसको. सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है. ए स्क्वायर वालों कमेंट, और नहीं जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, जो जल्दी देख रहे हैं लाइव में देख रहे हैं वो लाइव चैट पे डिस्कस करें, ठीक है. टू क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड बाय ऑर्गन दैट इज सेंट्रल, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर. एक्सेप्टेड है ये सेंट्रोमियर? आप लोग कहोगे हाँ मैम एक्सेप्टेड है. दिस सेंट्रोमियर कंसिस्ट अ कॉइलिंग ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज डीएनए. कोई डाउट? आप लोग बोलोगे हाँ, कॉइल होकर के क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. कोई डाउट? बिल्कुल नहीं. आप लोग बोलोगे मैम है ही नहीं. दिस डीएनए का जो एक सेगमेंट है ना बेटा, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पता है, जीन्स. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स. क्लियर? आए समझ में? समझना. अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन्स. एक छोटा सा पोर्शन ले लो,
which is responsible for inheritance of trait or inheritance or heredity of the character. लिखना genes. A segment of DNA is called as genes, which is responsible for heredity and inheritance. हेरिडिटी और हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस क्या है? ये लंबे चौड़े वर्ड का मीनिंग हम लोग देख चुके हैं. फिर आप बोलोगे मैम होमोजोगस और हेटेरोजोगस तो रह गया, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस. अरे बेटा जी रुको रुको, पहले ये समझो, ठीक है? क्योंकि क्या कहा मैंने? टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर टू सेट ऑफ जीन्स और टू सेट ऑफ एलील्स आर रिक्वायर्ड. एनी डाउट? बिल्कुल नहीं. क्रोमोसोम, this is what a genetic material which is present in nucleus. इस क्रोमोसोम के अंदर किसकी कॉइलिंग होती है? तो वो डीएनए की कॉइलिंग होती है. और ये डीएनए का एक सेगमेंट, एक फ्रैगमेंट को ही हम जीन कहते हैं, which is responsible for heredity and inheritance. लिख लो बेटा जी, heredity and inheritance. है कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल नहीं. You know what we are learning genetics. Question comes, who is father of genetics? Who is father of genetics? You know, a very famous, very renowned person that is called as Mendel. Gregor John Mendel is father of genetics. Genetics start तो कर दिया, कुछ definitions देख लिए क्या होता है genetics. पढ़ेंगे कैसे? I will teach you genetics in 3 basic ways. Pre-Mendelian, Mendelian, post-Mendelian. याद रखना बेटा, pre-Mendelian, Mendelian, post-Mendelian. मेंडेलियन के आने से पहले प्री मेंडेलियन का कॉन्सेप्ट बताती हूँ. उससे पहले भी मैं मेंडल के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दे दे, थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं हम लोग. आओ देखते हैं बेटा, समझे या नहीं समझे? समझ लेते हैं, ठीक है? चलो आओ, कम. तो a segment of DNA is called as gene which is responsible for heredity and inheritance. है कोई डाउट इसमें? Exactly not. तो who is father of genes तो देख ही लिए. अब लिखो who is father of genetics. क्या बोलोगे आप लोग? से एक सवाल पूछना चाहिए था मैम, आपने यहाँ पर जीन्स के बगल में एक और चीज लिख दी, पता नहीं कभी डिस्कस भी नहीं कर रहा, पूछा भी नहीं क्या होता है ये. बताओ मैं क्या होता है? एलील, ALLELE. क्या होता है बेटा जी? एलील. फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल. और फिर उसके बाद आई एम टेलिंग यू एक पॉइंट स्टेटमेंट, लिसन, ध्यान से सीखना, समझना. एलील इज an alternative form of gene, which is present on homologous chromosome, alternative form of gene which is present on homologous chromosome, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? अलील कहते हैं. What is this homologous chromosome? The morphologically and genetically similar chromosomes are called as homologous chromosome. कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं. Accepted? Yes. अब देखना बेटा, अगर ये एक मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम को ही हम लोग ने क्या कह दिया? ये जो क्रोमोसोम है ना, ये मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है, जेनेटिकली भी सिमिलर है, ऐसे टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम. कोई डाउट? समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया ना? ध्यान से सुनना. इस होमोलॉगस क्रोमोसोम को अगर हम ऐसे ड्रॉ करें और यहाँ पे अगर ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है या फिर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट है जिसको हम लोग टीटी से टॉल के लिए डिनोट करते हैं, तो ये है बेटा अपना एलील. समझ में? एलील इज टू फॉर्म और टू पेयर में हमेशा अलील का जो एक कैरेक्टर एक्सप्रेशन के लिए, ये जो अलील, इन्हीं को हम लोग अलीलोमॉर्फ्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? अलीलोमॉर्फ. और एक कैरेक्टर को दिखने के लिए ये दो अलील चाहिए ही चाहिए. समझ में आया? कोई डिफरेंस? जीन और इसके बीच में डिफरेंस है. ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स है,
ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है बेटा। दूसरी चीज, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो टी टी वाला है ये दोनों दिखना चाहिए। समझ में आया? ये दोनों टी अगर है तो ही एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया? नहीं आया? मेंडल ने इसी चीज को कहा था। व्हेन मेंडल के पास जाने से पहले होमोलॉगस समझ लो, ठीक है? When two identical allele या फिर allelomorph allele are required, when two identical alleles या फिर allelomorph are required to express the character, such condition is called as doubt accepted. When two identical allele are required to express the character, though same allele T and T, which stands for tall, ये two type of similar genes or alleles are required to express a character. उसी Mendel, what he did, he made a cross between the organism. अगर TT is for tall, then TT small TT genes or allele pair stands for small या फिर recessive character, recessive trait that is small. What did Mendel do? Mendel made a cross between tall male and short parent. समझ में? What is this cross? He made a mating. उसने उन दोनों के बीच में mating करवाई या फिर cross करवाया. किसके किसके बीच में? This is T, this is what? Tall male, and this is what? Small t. So this is what? Dwarf female. तो ये टी जो टॉल मेल है, उस ये टी किसको डिनोट कर रहा था? ये टॉल कैरेक्टर को डिनोट कर रहा था, तो उसको हमने देखा टॉल मेल को क्रॉस करवाया. किस प्लांट में क्रॉस करवाया? उस प्लांट का नाम है, he all studied his work on Pisum sativum. किसमें पढ़ा उसने? Pisum sativum, या फिर उसी को हम लोग पी प्लांट कहते हैं. समझ में आया? जिसका लाइफ स्पैन होता है बेटा जी 2 to 3 months. समझ में आया? कोई डाउट? जिसके क्रोमोसोम पेयर होते हैं 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर जिसका क्रोमोसोम का नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होते हैं ना, वो है 14. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं इसमें? तो वो है 14. है कोई डाउट? वर्कड ऑन दी प्लांट, जिसी को हम लोग पी या फिर पाइसम सटाइवम, और जिसका लाइफ स्पैन होता है बेटा जी 2 to 3 month, जिसमें 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 14. इसी पी प्लांट का टॉल स्पीसीज एंड शॉर्ट स्पीसीज के बीच का क्रॉस करवाया. अब देखते हैं कैसा मिला उसको F1 जनरेशन, या फिर उसको क्या दिखा? Was a mating between TT and TT. क्रॉस T for tall plant. और वो कौन सा प्लांट लिया था बेटा? पी प्लांट. ये गैमेट सेग्रीगेट होंगे T, और यहां से जो गैमेट सेग्रीगेट होंगे T, क्या बन जाएंगे? ये TT. ये जो दिखने के बाद ये जो आप TT देख रहे हो ना मैम, फिर आप बोलोगे मैम ये तो आपने टॉल के लिए TT बताया था, स्मॉल के लिए ये TT स्मॉल t. But what did that beautiful concept did the Mendel noticed? उसने ये नोटिस किया TT, and what happened? You know, this character again appeared as tall. और उसको कैसे पता चला ये TT है? वेट, धैर्य रखो, आगे के लेक्चर्स में भी समझ में आ जाएगा बेटा. चलो इतना समझ लो पहले, ठीक है? TT को क्रॉस करवाया, क्या मिला? TNT. हाँ, और ये भी प्लांट टॉल थे. तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने कंक्लूड किया, इसका मतलब there comes a character or there comes a chance which a character
or a trait which suppresses the character of other one. Recessive trait याद आ रहा है? A trait which suppresses or does not express. T तो किसके लिए था? शॉर्टनेस के लिए या फिर ड्वार्फ के लिए था? T बड़ा वाला T किसके थे? टॉलनेस। पर ये जो प्लांट थे वो कैसे थे? टॉल। इसका मतलब क्या हुआ? ड्वार्फ जो था वो सप्रेस हो गया। क्या हो गया? सप्रेस हो गया और टॉलनेस नजर आई। ये मेंडल ने इसको कंक्लूड किया कि देयर कम्स अ कैरेक्टर व्हिच इज ट्रांसफर्ड प्लस इट सप्रेसेस द कैरेक्टर और इट सप्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ अदर सब्सिक्वेंट जीन और एलील। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग डोमिनेंट कहते हैं और जो सप्रेस हो गया उसी को हम लोग रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। जिसने जिस कैरेक्टर को सप्रेस करा उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं और जो दिख रहा है, जो कैरेक्टर सप्रेस हो गया उसको हम लोग रेसेसिव कहते हैं। फिर एक और चीज मैंने आपको होमोजाइगस बताई कि दो आइडेंटिकल एलील जब जरूरत पड़े किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए उसी को हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, पर फिर आप बोलोगे मैम टी आर आइडेंटिकल? नो, दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, आर दे आइडेंटिकल? दे आर नॉट आइडेंटिकल। पर ये कैरेक्टर दिखा रहे हैं क्या? हाँ दिखा रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर दिखा रहे हैं? ये टॉलनेस का कैरेक्टर दिखा रहे हैं। सो अब लिखो बेटा जी, व्हेन टू नॉन आइडेंटिकल जीन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर कंडीशन, सच कंडीशंस इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस। समझ में आया हेटेरोजाइगस कैसे करवाया? कितना इजी था, कैसे लिंक जुड़ा? समझो बच्चों कितने ब्यूटीफुली। मेंडल साहब तब समझ चुके थे, हम अब समझ जाएं वही बहुत बड़ी बात है। पर समझ जाओगे क्यों? क्योंकि आई एम टीचिंग यू, एनआर मैम इज टीचिंग यू। स्टे मोटिवेटेड। इकोलॉजी जैसा नहीं है, दिमाग लगाओ दिमाग। समझो, टी टॉल था, टी ड्वार्फ था, दोनों को क्रॉस करवाया, टीटी दिखा। पर टीटी के हिसाब से वो जो प्लांट थे वो भी टॉल दिखे। समझ में आया? टॉल दिखे तो उसने ये चीज कंक्लूड करी। इसका मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा कोई कैरेक्टर है, किसने? मेंडल ने, जो इस शॉर्टनेस को सप्रेस कर देता है। समझ में आया? सप्रेस करने के बाद वो जो नजर आता है वो टीटी है हमारा। इसी को हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर टू डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स आर रिक्वायर्ड। आया समझ में? कोई डाउट? अब लिखना हेडिंग, व्हाट इज हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस प्लांट था, ड्वार्फ प्लांट था, पी प्लांट, क्रॉस करवाया, टीटी मिल गया और ये जो प्लांट मिला वो भी कैसा मिला? टॉल मिला। टॉल ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए भी टू नॉन आइडेंटिकल जीन की रिक्वायरमेंट है ना बेटा? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस। लिखना, नॉन आइडेंटिकल जीन्स आर रिक्वायर्ड, genes are required when two non-identical genes are required। बताया मैंने आपको, जीन बताया मैंने आपको, डीएनए बताया मैंने आपको, एलील बताया मैंने आपको, कैरेक्टर बताया, ट्रेट बताया, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, सब कुछ बता दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई डाउट? When two non-identical genes TT are required to express the character, उसी को हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। एक्सेप्टेड? आप लोग बोलोगे यस मैम, एक्सेप्टेड। अगला पॉइंट लिखना, लिख लो टीटी। मेंडल ने ये तो देख लिया क्या कि टू डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स रिक्वायर हो रहे थे टॉल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ था जो एक को सप्रेस कर रहा था और एक कैरेक्टर डोमिनेंट था एक के ऊपर, वो डोमिनेंट वो रेसेसिव था, मेंडल ने देख लिया था। लेकिन मेंडल ने ये चीज भी नोटिस करी थी, कुछ न कुछ ऐसा कोई एलिमेंट या फिर ऐसा कोई फैक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तब जाकर के पेरेंट्स यानी ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से कुछ सिमिलैरिटीज कुछ वेरिएशन दिखाते हैं और उसी एलिमेंट को उसने फैक्टर कहा। फैक्टर, उसी एलिमेंट को उन्होंने क्या कहा? फैक्टर। ही व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और हेरिडिटी क्या था? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर
यही वो जो फैक्टर है जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तभी तो बच्चे कुछ कुछ अपने पापा या मम्मी या फिर एंसेस्टर्स, फोरफादर, डैड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमॉम, ग्रैनी से सिमिलैरिटी दिखाते हैं। आप लोग बोलोगे हाँ मैम जरूर दिखाते हैं, ठीक है, समझना। हेरिडिटी फैक्टर, इट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी which is responsible for what? Responsible for inheritance and variation, similarities and variations लिखना। similarities मतलब मॉम डैड के सिमिलर दिखना, वेरिएशन मतलब उनसे कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाना, ठीक है। वो भी तो होता है ना, हर जनरेशन में होता है ना बेटा जी। आप लोग कहोगे हाँ मैम होता है, ठीक है। तो यही वो फैक्टर है, और इसी फैक्टर को मेंडल ने एलिमेंट भी कहा था। क्या कहा था इसी फैक्टर को? मेंडल ने एलिमेंट। व्हाट डिड ही नेम दिस फैक्टर? ही नेम दिस फैक्टर एज एलिमेंट आल्सो। एनी डाउट? नो मैम, नो डाउट। इसको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, मेंडल ने एलिमेंट भी कहा था, और ये मान चुके हैं हम। इसी फैक्टर को बाद में जोहानसन ने इसको जीन कह दिया। जो मैंने आपको बताया ना, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, याद करो, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन, एंड दैट वाज गिवन बाय जोहानसन। बेटा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम बताऊं जिन्होंने बहुत सारे टर्म्स कंट्रीब्यूट किए थे। लिखना, 3 साइंटिस्ट है शुरू में, आगे और भी आएंगे। तीनों साइंटिस्ट के नाम देखना। यू नो व्हाट, द टर्म फैक्टर या फिर एलिमेंट किसने दिया था? जल्दी जल्दी लाइव सेशन वाले कमेंट करो। द टर्म एलील, द टर्म होमोजाइगस, द टर्म हेटेरोजाइगस, किसने दिया था? फटाफट से कमेंट करो, ठीक है। फैक्टर एलिमेंट किसने दिया था? लाइव सेशन वाले जल्दी जल्दी लाइव में कमेंट करो। उसके बाद जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट करिए प्लीज। मैंने आपको कहा है, आपको ये ब्यूटीफुल वे है ए स्क्वायर एनआर मैम को रीपे करने का। यू नो व्हाट, आई टीच यू विथ होल हार्टेडली एंड आई बिलीव माय स्टूडेंट शुड आल्सो अंडरस्टैंड इन दैट वे ओनली। So you do understand and please do follow it, okay? And please do comment it, okay? चलो, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये टर्म किसने दिया था? ऊपर से एक और टर्म आ जाता है जो कि है हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये तो मैं वैसे भी बता चुकी हूँ। जल्दी जल्दी लाइव सेशन वाले जल्दी से लाइव कमेंट करो, और बाकी लोग कमेंट बॉक्स में करिए फटाफट। ए स्क्वायर वाले भी कमेंट कर सकते हैं, करो बच्चों, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। चलो, द टर्म फैक्टर एंड एलिमेंट वाज कॉइन्ड बाय या गिवन बाय, कौन था ये पता है? द टर्म फैक्टर या फिर एलिमेंट किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय ग्रेगोर जॉन मेंडल। स्टार्टिंग में लिखवाया था फादर ऑफ जेनेटिक्स, वही है ये बंदा। द टर्म एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस किसने दिया था? एक ही बंदा है बेटा, इसीलिए मैं एक साथ ज्वाइन करके लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद ही रहेगा। डब्ल्यू बेटसन बोलते हैं उसको। द टर्म जीन किसने दिया था पता है आपको? किसने दिया था पता है? जोहान। एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है पता है? मेंडल। डाउट है, बस याद रख लेना है, पूछे जाते हैं ये नाम, तीनों नाम याद रखना है। पहले मैंने आपको ये टर्म्स पढ़ाए, ये चारों टर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। जीन क्या है, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, एलील, एलिमेंट, फैक्टर, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर? आ रहा है ना मजा पढ़ने में? आएगा और मजा आएगा। द टर्म जीन वाज गिवन बाय जोहानसन। इसी फैक्टर को बाद में जोहानसन ने बदल के जीन कर दिया, कोई डिफरेंस था? एंड वही बोलता है कि वो जीन एक फैक्टर, ये एक एलिमेंट या सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के लिए फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग जीन कहते हैं। और उसको मेंडल ने तब में, बिना इतने ओल्डन टाइम में मेंडल ने कह दिया था उसको, एक ऐसी कोई चीज जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होती है, जिसके वजह से वो कैरेक्टर बच्चों में भी नजर आता है, और उसी को उसने फैक्टर या फिर एलिमेंट कहा। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं बच्चा। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस तो पढ़ चुके। एक और चीज पढ़ाती हूँ। मैंने कहा एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए 2 एलील, 2 जीन की जरूरत होती है। 2 सेट ऑफ जीन्स या फिर 2 सेट ऑफ एलील्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर। एक्सेप्टेड? 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 यस, एक्सेप्टेड। बट एक ऐसा कंडीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमीजाइगस। क्या लिख लो बेटा?
जिसको हम लोग बोलते हैं हेमीजाइगस। व्हाट इज दिस हेमीजाइगस? टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर, to express a character, only one gene expresses of, only one gene expresses of. Such condition is called as, such condition is called as हेमीजाइगस। एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दो में से सिर्फ एक ही जीन एक्सप्रेसेस एंड ओनली वन जीन इज रिक्वायर्ड, ओनली वन जीन इज रिक्वायर्ड, ओनली वन जीन इज रिक्वायर्ड, और एक ही जीन एक्सप्रेस कर जाती है। Such condition is called as hemizygous, and this condition also leads to chromosomal abnormality. बेटा ये एबनॉर्मल के केस में होता है, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। एक एलील एक ही कैरेक्टर को दिखा रहा है तो वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की कंडीशन दिखा देता है। यहां देखना, मेंडल तो बेचारा फैक्टर एलिमेंट तक ही रह गया, इट वाज नॉट तक, सो मच ही डिड इन हिज टाइम। क्या क्या किया उसने, आई विल शो यू जब मेंडलिज्म पे पढ़ेंगे। अभी बेटा प्री मेंडलिज्म चल रहा है, 2 दिन प्री मेंडलिज्म ही चलेगा। प्रिपेयर होकर आओ, पढ़कर आओ, खाकर आओ, रात को देख रहे हो तो भी चलेगा, सुबह देख रहे हो तो भी चलेगा, पर 2 दिन तक प्री मेंडलिज्म ही चलेगा, ठीक है। चलो, एलील होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बेटसन ले आया, फिर फैक्टर से ये ले आया, जीन जोहानसन ले आया उसी फैक्टर को, और इसी जीन और इसी खेल को हमने जेनेटिक्स बना दिया। एंड यू नो हु इज दैट ग्रेट पर्सन टू गिव द नेम जेनेटिक्स? आई विल टेल यू, राइट? द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, या गिवन बाय, was coined by Bateson, was coined by Bateson। है कोई डाउट? समझ में आया? क्लियर है? आ रहा है ना बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? आप लोग बोलोगे हाँ मैम बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो अगला हेडिंग डालिए, इंटरेस्टिंगली और इजीली। क्या डालोगे आप लोग, मैं बताती हूँ आपको, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। पहले फिनोटाइप देखेंगे फिर जीनोटाइप देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए फिनोटाइप। लो, बोला ना मैंने, क्या डालोगे, फिनो टाइप डाल लिया, हम बोलोगे डाल लिया, डाल लिया। चलो लिखो, इट इज एन morphological appearance, morphological appearance of the morphological, और इसी को बेटा जी लिख लेना, physical appearance, physical appearance of the character। each phenotype has some genetic, each phenotype has some genetic makeup, each phenotype has some genetic makeup, and phenotypes depend on phenotype depends on genotype and environmental conditions, environmental conditions। समझना बेटा, phenotype is what? It is a morphological appearance। किसी भी कैरेक्टर को अगर हम फिजिकली देख सकते हैं, सपोज टॉल इज अ कैरेक्टर, इट एक्सप्रेसेस फ्रॉम इट पेरेंट्स, इट बिकम स्ट्रेट। उसी ट्रेट, उसी कैरेक्टर को जब हम फिजिकली देख सकते हैं कि ये इंसान लंबा है, ये पेड़ लंबा है, banyan tree is the longest tree, banyan tree, then फिर what, pteridophytes are the short plant, land plants, short creepers are present। क्या है ये क्वालिटी, ये देख सकते हैं, टॉल, हाइट, शॉर्ट, फिजिकल अपीयरेंस है उनका, एंड दैट इज व्हाट क्लियरली विजिबल थ्रू अ नेक्ड आईज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो लिखना, इट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर। एक कैरेक्टर कैसा अपीयर होता है, उसको हम लोग कैसे देख रहे हैं, किस कलर का है। इन स्किन कलर की बात कर लो, सम आर फेयर, सम आर डार्क इन कलर, है ना बेटा, है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी उनका फिनोटाइप हो गया। कोई डाउट? ईच फिनोटाइप हैज सम ऑफ द जेनेटिक मेकअप,
अगर कुछ ना कुछ अगर कोई फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है या फिर दिख रहा है, उसका इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कुछ ना कुछ जेनेटिक मेकअप है, और उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फिनोटाइपिक। समझ में आई? फिनोटाइप। एंड वो जेनेटिक मेकअप क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझ में आ जाएगा, वो पन्ना वो पहलू थोड़ा रोक के रखो बेटा, ठीक है। फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। फिनोटाइप, कुछ लोग गोरे होते हैं, एक्सेसिव सन में जाकर टैनिंग हो जाती है, बदल गया ना फिनोटाइप, हो गया ना एनवायरमेंटल कंडीशन इफेक्ट, आया ना। प्लांट्स ब्यूटीफुल होते हैं, एक्सेसिव टेम्परेचर में कांटे आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर लॉस ना हो, आ गया ना। फिर एनवायरमेंटल कंडीशन से उनकी फिनोटाइप चेंज हुई। एंड जीनोटाइप की वजह से भी, अगर जीन चेंज हो गया, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कि फिनोटाइप कैसा दिखेगा और कैसा होगा। अगर जीन चेंज हो गया तो ऑब्वियसली बेटा 102% उनका जीनोटाइप चेंज होना ही हो, उनका अगर जीन चेंज हो गया तो उनका फिनोटाइप चेंज होना ही है। जीनोटाइप चेंज हुआ, फिनोटाइप चेंज होगा, पर फिनोटाइप चेंज होने का मतलब ये नहीं है बेटा जी कि जीनोटाइप चेंज होगा। अभी लिख लो, यानी फिजिकल फीचर्स चेंज हुआ तो जरूरी नहीं कि जेनेटिक चेंज होगा। चेंज इन फिनोटाइप, change in genotype, change in phenotype doesn't mean there is change in genotype, in phenotype doesn't mean there is change in genotype। है कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हुआ? समझ में आया? चेंज इन फिनोटाइप डजंट मीन देयर इज, आप गोरे हो, एक्सेसिव धूप में जाकर आप काले पड़ गए, ठीक है, वो कालेपन के बाद आपको क्या नजर गया आया कि आप थोड़े से टैन, आपका कलर चेंज हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशन है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ, पर क्या जीनोटाइप चेंज होगा? अगर जो जीन आपको जीनोटाइप के लिए, गोरे यानी फेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अभी भी वही होगी। क्लियर है फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट? अगला टॉपिक डालिए, जीनोटाइप डालिए बेटा जी, डालिए, जल्दी जल्दी डालिए, ठीक है। चलोगे जीनोटाइप, चलो बेटा डाल दो हेडिंग जल्दी से, जीनोटाइप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन phenotype is called as what? Is called as genotype। एग्जाम्पल से समझना, फिनोटाइप का एक एग्जाम्पल टॉल है टीटी, समझ में आ गया? टी और टी, ठीक है। ये क्या था? फिनोटाइप था, पर ये जो टॉल है इसको एक्सप्रेस होने के लिए किसी न किसी जीन की जरूरत पड़ी। वो जीन क्या था? हमारा टीटी था ना बेटा जी, हमारा टीटी जीन। इस जीन की इसकी जरूरत की वजह से ही तो ये जीनोटाइप। तो व्हेन फॉर अ फिनोटाइप देयर इज नीड फॉर अ जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। टॉल ये एक फिनोटाइप कैरेक्टर है और उसी फिनोटाइप कैरेक्टर का जेनेटिक मेकअप है टीटी। ड्वार्फ भी एक फिनोटाइप कैरेक्टर है, उसी फिनोटाइपिक कैरेक्टर का जीनोटाइपिक मेकअप है स्मॉल टी। कोई डाउट? छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने समझा दिया। अगला हेडिंग डालिए, उससे जाने से पहले हाइब्रिड विगर। क्या डालोगे बेटा? हाइब्रिड विगर डालो बेटा जी, चलो डाल दो हेडिंग एज हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर टू एक्सप्रेस the superiority of the offsprings, to express the superiority of the offsprings from parent, चालू है, to express the superiority of the offspring from parent or to show superiority of the offspring from parents is called as hybrid vigor, is called as hybrid vigor। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर होता है। ऑब्वियसली बेटा, क्यों? क्योंकि हम एक नेक्स्ट जनरेशन होते हैं अपने पेरेंट्स से, हमको कुछ न कुछ वेरिएशंस दिखाते हैं, हम कुछ न कुछ एडेप्टेशंस दिखाते हैं, हम कुछ न कुछ एडेप्ट करते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखाते हैं, तो हम वन स्टेप एडवांस होते हैं ना। इसीलिए द सुपीरियरिटी,
ये पहले ही आ चुका है जेनेटिक्स में कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो हमेशा प्रीवियस जनरेशन से सुपीरियर होती है। समझ में आया? एंड टू एक्सप्रेस दैट सुपीरियोरिटी फ्रॉम द प्रीवियस और फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, उसी को हम लोग हाइब्रिड विगर कहते हैं। बच्चे हमेशा माँ बाप से सुपीरियर होते हैं, नॉट इन दैट सेंस बट इन एडेप्टेशंस, बट इन वेरिएशंस, बट इन सिमिलैरिटीज, बट इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप, फिनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग। उस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर। एंड दिस हाइब्रिड विगर vanishes due to inbreeding. This लिखना बेटा, this hybrid vigor vanishes due to inbreeding. What is this inbreeding? This inbreeding is close mating. समझ में आया? The hybrid vigor vanishes due to inbreeding. Inbreeding मतलब close mating. You show organism showing mating in close relation or close blood relations. उनकी जो वेरिएशन या फिर रिकॉम्बिनेंट की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। हाइब्रिड विगर का कम होना इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इनब्रीडिंग। एंड व्हाट इज दिस इनब्रीडिंग? दिस इज क्लोज मेटिंग, ब्लड रिलेशंस में मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशंस, या फिर मैरिज और क्रॉस बिटवीन द क्लोज ऑर्गेनिजम्स, या फिर क्लोज प्लांट स्पीसीज। हाइब्रिड के लिए हाइब्रिड को ज्यादा प्रेफर नहीं करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग इनब्रीडिंग कहते हैं। दिस इनब्रीडिंग लीड्स टू वैनिश और डिमिनिश और फिनिशेस द हाइब्रिड विगर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब ये हाइब्रिड विगर कम हो जाता है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, व्हिच हैपेंस ड्यू टू क्लोज मेटिंग और इनब्रीडिंग, यानी मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशंस या फिर क्लोज रिलेशंस। ठीक है? एक और पॉइंट, स्टार पॉइंट लिखना बेटा जी, एटाविज्म। ठीक है? क्या लिखोगे? एटाविज्म। एक्सप्रेशन ऑफ और टू एक्सप्रेस द ancestral character, to express the ancestral character is called as atavism. किसी भी ancestral character का expression या दिखना, उसको हम लोग atavism कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो बेटा जी, क्या लोगे? डेवलपमेंट ऑफ टेल का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? अटाविज्म। ये एंसेस्टर्स में होता था अपने, लाइक वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टेल, और वो कुछ बेबीज में या कुछ न्यू बॉर्न बेबीज में एक वेस्टिजियल ऑर्गन टाइप का डेवलपमेंट दिखा देता है, जिसको टेल बोलते हैं, टेल डेवलपमेंट। तो वो एंसेस्टर्स से आया है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग टेल डेवलपमेंट कहते हैं। एंड दिस क्वालिटी हैज बीन कम फ्रॉम एंसेस्टर्स, बट इट इज ऑफ नो यूज, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एटाविज्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटाविज्म। लिख लो बेटा, याद कर लो, समझ लो। कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ पूछना है जरूर पूछो। डालिए यूजेनिक्स। व्हाट इज दिस यूजेनिक्स? टू एक्सप्रेस द superiority in organism, superiority of future generation to express the superiority of future generation from parent, उसी को हम लोग यूजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है बेटा? उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। टू एक्सप्रेस द सुपीरियोरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम पेरेंट, उसी को इन ह्यूमंस के केस की अगर बात करें तो उसको हम लोग यूजेनिक्स बोलते हैं। अगर किसी और ऑर्गेनिजम्स के केस की बात करें तो उसी को हम लोग हाइब्रिड विगर कहते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हैव अ वेरी गुड डे, वेरी गुड इवनिंग, एंड everything should be good because you people are learning
genetics by NR ma'am. Okay? Thank you very much. We have learned today so much. We have to next class we will be moving on with the pre-Mendelism concept. Few theories we will see of pre-Mendelism. Then we will move on to Mendelism concept. We will see types of laws. We will see types of crosses. We will see the beauty of genetics. And thank you very much. And do like it, do comment it, and please do watch carefully because this is a very beautiful video and very beautiful concept which I have made a lot of efforts so that you can understand easily, and please follow it variantly. Thank you very much. Yeah, thank you. Take care. Have a nice day. Okay, good luck.